دوستو آداب، میں ہوں عرفان صدیقی اور آپ کا دستک ٹوڈے چینل پر بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو ماہ ربیع الاول کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور گزرے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو پوری دنیا نے کتنے جوش و خروش اور عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ بنایا، وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ دوستو اسی کو لے کر الگ الگ مقامات پر جلسہ عید میلاد النبی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دوستو آج ہم گورکھپور کے گیتا پریس روڈ واقع رانی اشرفن خانم امام باڑے میں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ دوستو اسی پروگرام کو دکھلانے کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو آئیے ہم آپ کو پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور دیکھیے کس طرح سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے تمام شعراء کرام اور علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیے۔ تاکہ محفل کا آغاز باقاعدہ شروع کیا جا سکے، ان کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات کا سہارا دیتے محمد وعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب ہوتا ہے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، جو نبی کے قریب ہوتا ہے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو جس کا آقا خود امیر عرب، وہ بھلا کب غریب ہوتا ہے، وہ بھلا کب غریب ہوتا ہے۔ آئیے میں جناب کمائل حیدر صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ دیکھو کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کہاں پہ ہے جلوہ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ چاند بھی ہے نقش کفے کا رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پہ ہے کہ نعمت خدا نے بھیجی ہے، اکبر کی شکل میں نعمت خدا نے بھیجی ہے، اکبر کی شکل میں بار رسول دیکھ لو چہرہ رسول سنا رہے تھے، اور میں 4 مصرے کے بعد شاعر کو آواز دوں گا۔ یا نبی آپ کے بن ہے میرا جینا کیسا،
یا نبی آپ کے بن ہے میرا جینا کیسا، پار لگتا ہی نہیں غم کا سفینہ کیسا، صرف اتنی ہی تمنا ہے تیرے عاشق کی، کاش میں دیکھ لوں ہے تیرا مدینہ کیسا۔ میں جناب عامر حسین اور سونو صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، صلوات پڑھیں قیامت کے لیے محمد وعد دین کی نصرت کیوں نہ ہو، اے محمد کا گھرانہ دین کی نصرت کیوں نہ ہو، سلسلہ در سلسلہ حق کی حمایت کیوں نہ ہو۔ باپ عبداللہ ماں ہے آمنہ جس شخص کی، باپ عبداللہ ماں ہے آمنہ جس شخص کی، ابدیت انسانیت اس کی بدولت کیوں نہ ہو۔ سر اٹھائے ہے جہالت اب بتوں کی چھاؤں میں، سر اٹھائے ہے جہالت اب بتوں کی چھاؤں میں، ہر طرف مکے میں وحشت اور دہشت کیوں نہ ہو۔ کوئی عبد المطلب پھر ہے اٹھا دینے سبق، کوئی عبد المطلب پھر ہے اٹھا دینے سبق، خاندانی شان و شوکت عزم و ہمت کیوں نہ ہو۔ جب ماں نے اب رہا امن و امان کی بات کو، جب ماں نے اب رہا امن و امان کی بات کو، کچھ ابابیلوں سے ظاہر غیبتی طاقت کیوں نہ ہو۔ میری سانسوں میں بسی آج تلک ہے خوشبو، میں نے ایک بار ہی چوما تھا محمد لکھ کر، میں نے ایک بار ہی چوما تھا محمد لکھ کر۔ جناب شکیل اختر رضوی صاحب کی بارگاہ میں درخواست گزار کر اور تشریف لائیں کی لبوں پہ جب بھی محمد کا نام آیا ہے، واہ، لبوں پہ جب بھی محمد کا نام آیا ہے، اور سکون قلب و جگر کو عجب سا پایا ہے، واہ، سکون قلب و جگر میں عجب سا پایا ہے، اور جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، واہ، وہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، بشر کی شکل میں وہ نور جگمگایا ہے، سبحان اللہ، سبحان بشر کی اللہ، شکل میں وہ نور جگمگایا ہے، سبحان اللہ، اور کبھی نہ دیکھا گیا اس کے جسم کا سایہ، کبھی نہ دیکھا گیا اس کے جسم کا سایہ، وہ جس کا آج بھی سارے جہاں پہ سایہ ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ہے، کبھی نہ دیکھا گیا جس کے، کبھی نہ دیکھا گیا اس کے جسم کا جسم کا سایہ، وہ جس کا آج بھی سارے جہاں پہ سایہ ہے۔ حیات دہر میں سردار انبیاء کا نزول، حیات دہر میں سردار انبیاء کا نزول، تبھی تو گنجے اسلام مسکرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکیل اختر صاحب رضوی پیش فرما رہے تھے، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پر جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں گی یہ سارے ہیں محمد۔ آئیے میں جناب شاہ بلوری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلى ایک مقرر چند اشعار سنانا ہے۔ بسم اللہ جا کے مصطفیٰ سے بول دے اے صبا سلام تو میرا، تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا، تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا۔ روضے رسول پا جبے رکھ کے میری سمت سے ذرا، روضے رسول پا جبے رکھ کے میری سمت سے ذرا، کہنا میرے تاجدار سے حال دل تمام تو میرا، تجھ کو تیرے رب کا واسطہ کر دے ایک کام تو میرا۔ مولانا فرمائیے کیسے بیان کروں میں نبی کے صفات کو، کیسے بیان کروں میں
نبی کے صفات کو کوزے میں کس طرح سے سمیٹوں فرات کو. شیخ سنیے کیسے بیان کروں میں نبی کے صفات کو, کوزے میں کس طرح سے سمیٹوں فرات کو. اے آمنہ کے لال تصدق میں آپ کے تقسیم ہو رہا ہے شرف کائنات کو. میں جناب محترم قاری محمد عثمان صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. نعت پاک کے دو شعر پیش کرنا اور سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے. واہ واہ. ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے. ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے. ذکر نبی سے آتے ہیں, ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے. رحمت کے پھول کھلتے ہیں پیغام نئے نئے. رحمت کے پھول کھلتے ہیں پیغام نئے نئے. دلکش حسین گنبد خضرا کی چھاؤں میں. دلکش حسین گنبد خضرا کی چھاؤں میں آتے ہیں در پہ روز ملائک نئے نئے. آتے ہیں در پہ روز ملائک نئے نئے. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ. جزاک اللہ. روضہ مصطفیٰ قابل دید ہے. روضہ مصطفیٰ قابل دید ہے. جس طرف دیکھیے عید ہی. وہ زمانے میں گمراہ ہوتا نہیں. وہ زمانے میں گمراہ ہوتا نہیں. جس کے سینے میں تنویر توحید ہے. جس کے سینے میں تنویر توحید ہے. روضہ مصطفیٰ قابل دید ہے. میرے پاس الفاظ کے دامن میں کوتاہی ہو رہی ہے بیان کرتے ہوئے کہ استاد الاساتذہ استاد محترم جناب وسیع حسن خان صاحب قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں, درخواست گزار ہوں کہ دعائیں وہ افروز کریں اور مومنین کے قلوب کو سیرت نبوی سے نورانی فرمائیں. حضرات ان کی آمد کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیں. محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله
मुबारकबाद है वो लोग कि आज उस शख्सियत के जश्न विलादत में हाजिर हुए, तशरीफ़ लाए, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात खल्क़ की, जिसके लिए हदीस कुदसी में खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर आप न होते मैं कायनात को खल्क़ न करता। सारी दुनिया का वजूद हज़रत के तुफ़ैल में है, हज़रत के सदक़े में। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, ज़ाहिर सी बात है कि ये महफ़िल है और महफ़िल में उमूमन मोमिनीन का मिजाज ये होता है कि शुअरा को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, लेकिन शर्त यही है कम पढ़ने की कि अब आइंदा बात नहीं करेंगे आप लोग, हाँ तो लंबा कर देंगे। तो मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन जिस हदीस आया करीमा की तिलावत की है, हज़रत हक़ जल्ल व अला का इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे हबीब मैंने आपको कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। ये कायनात के लिए या दुनिया के लिए हमने कह तो दिया, लेकिन क्या वाकई सही तर्जुमा है ये? ना, इसलिए कि आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है आलमीन। आलमीन जमा है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसका वाहिद क्या होगा? आलम। और आप जानते हैं कि अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 होना चाहिए, 2 से भी काम नहीं चलेगा, वरना तस्निया आलमैन होता तो आलमी, दुनिया व आखिरत मान लेते हैं अगर आलमैन होता तो आलमीन, तो 3 तो कम से कम मानना पड़ेगा। अब इस आलमीन का वाहिद क्या है? आलम। आलम माने, सवाल यही है, दुनिया। तो चलिए साहब, आलम माने दुनिया, दुनिया माने कायनात, तो कायनात माने, सवाल होगा नहीं होगा? तो अब जो हम लोगों को पढ़ाया गया आलम किसे कहते हैं, देखिए ये दिमाग में ना हो कि ये ज़मीन है एक आलम, चाँद पे चले जाइए दूसरा आलम, ना। हम लोगों को जो पढ़ाया गया अकायद की किताबों में, आलम की मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो क्या है? आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के अलावा जो कुछ है कायनात में सबका रब वो है ना। तो आलम क्या है? मा सिवल्लाह, तो ये पूरा मंजूमे शम्सी, पूरा मंजूमे, उसमें चाँद, सितारे, सूरज, ये पूरा जो सिस्टम है ये सब मिला के एक आलम होगा। कुरान ने कहा कि हमने आलम के लिए रहमत नहीं बनाया है, आलमीन के लिए रहमत बनाया है। तो मानना पड़ेगा कि इसके अलावा भी आलम है, इसके अलावा बहुत से आलम हैं, इससे पहले भी आलम थे, इसके बाद भी आलम है, कुरान में भी जिक्र है उसका। इसके पहले जो आलम है आलम ज़र या आलम अरवाह या आलम गैब, जिसको कुरान की ज़बान में कहते हैं मलकूत, आलम मलकूत। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै, तो एक आलम इससे पहले था जो है क्या? आलम मलकूत या आलम गैब या आलम अरवाह। उसके बाद अब ये आलम आया जिसको कहिए आप आलम शुहूद या आलम ज़ाहिर या आलम मुल्क। कुरान में नासूत पहले आलम मुल्क, नासूत लाहूत एक अलग तकसीमात है। अब उधर जाए हमको तो कम से कम 3 साबित करके आगे बढ़ना है, हमारी तकरीर का मौजू अवालिम नहीं है। अब आइए दूसरा क्या हुआ? आलम मुल्क, जिसमें हम रह रहे हैं। कुरान क्या कहता है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो ये दूसरा आलम हुआ। हम भी इससे पहले वाले आलम में
बोलिए थे कि नहीं थे? आलम अरवाह में थे, वहां से आए इस आलम में। और हमारा ये है कि हम पिछले आलम में जो थे, इस आलम में आने के बाद हमको कुछ नहीं पता कि क्या था। फिर उसके बाद इस आलम में आए तो इसे क्या कहा गया? आलम शुहूद, आलम जाहिर, आलम मुल्क। उसके बाद ये आलम खत्म होगा, मर गए आप तो अब नया आलम शुरू होगा, आलम बरज़ख, वो खत्म होगा, एक तीसरा आलम शुरू, चौथा आलम शुरू होगा, आलम क़ियामत, है ना? आलम क़ियामत, ये कम से कम 4 हो गए ना। तो अब आलमीन कहा जा सकता है। अल्लाह ने अपने लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें मखसूस उस रब अल्लाह के लिए जो रब है सारे आलमों का, वो चाहे इससे पहले वाले हो चाहे आने वाले हो, सारे आलमों का एक रब है जिसका नाम है अल्लाह। वही खुदा जो अपने लिए कहता है कि मैं सारे आलमों का रब हूँ, वही अल्लाह अपने हबीब के लिए कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहाँ जहाँ अल्लाह की रुबूबियत है, वहाँ वहाँ हबीब की रहमत है। एक चीज और सुनाए आपको, अंबिया, जवाब दीजिए आप, अंबिया सब अल्लाह ने बनाए? क्या सारे अंबिया बराबर हैं? बोलिए नहीं ना। दलील है कोई आपके पास के सारे अंबिया बराबर? अंबिया कुल कितने हैं सर? 1 लाख। कैसे बता? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम, इनका एहसान है पूछ पूछ के हम तक पहुंचा दिया। बिहार में रिवायत है, हजरत अबू ज़र ने पूछा या रसूल अल्लाह अंबिया कितने? हजरत ने फरमाया 1 लाख। तो नबी कितने? 1,24,000। उसमें रसूल कितने? 313। उसमें उलुल आज़्म कितने? 5। साहिबाने किताब कितने? 4। तो तौरात ने हजरत मूसा को की अता। जो हम लोगों को बचपने में अकायद पढ़ाए जाते हैं, बुनियादी एतकाद हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, तो अच्छा बच्चों को याद हो जाए। तौरात हक ने हजरत मूसा को की अता, इंजील दी मसीह को, कुरान हमें दिया, दाऊद की किताब इलाही ज़बूर है। इन चारों पर यकीन भी हमको जरूर है। तो किताब के साहिबाने किताब कितने सर? 4। तो सब बराबर तो नहीं हुए ना। आपके पास कुरानी कोई दलील है कि तीसरा पारा इसी से शुरू ही होता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने रसूलों को बास पर, बोलिए व्हाट्स क्राइटेरिया? फजीलत का मेयार क्या था? कैसे तय होगा कौन सा नबी खाली नबी रहेगा, कौन सा नबी बस अपनी जात तक रहेगा, कौन सा नबी रसूल भी होगा, कौन सा नबी जो है साहिब शरीयत होगा, कौन सा नबी उलुल आज़्म होगा? इसका कोई मेयार है? हाँ, इसका कोई क्राइटेरिया है? देखिए बहुत सी जगह आप हम चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन है तो इंसान, आम इंसान ही ना, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपने बाद एक गाइडलाइन दी थी कि इस तरह की बातें मेरे बच्चों के अलावा कोई बता नहीं सकता है। इसीलिए फरमा के गए, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहला बैती। तो अब क्राइटेरिया क्या है? कौन सा नबी बड़ा होगा? यह है ना। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका कि इससे पहले भी आलम, एक हदीस जो हमारे यहाँ भी है और बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी है, अल्फाज जरा जरा से फर्क के साथ। कौन सी? कुन तो बोलिए, हाँ सही फरमाइए। कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, एक लफ्ज। दूसरा लफ्ज है कुन तो नबी व आदम बैन रूह वल जसद।
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, ठीक। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्मो रूह के दरमियान थे। एक लफ्ज, दूसरा लफ्ज कुन्तुम जुइलतु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त नबी बनाया जा चुका था जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। वजबत लियन नबूवा, ये ज़ाहिर में जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है कि पूछा किसी ने, या रसूल अल्लाह आपके ऊपर नबूवत कब फर्ज हुई? फरमाया वजबत लियन नबूवा व आदम बैन रूह वल जसद। मेरे ऊपर उस वक्त से नबूवत फर्ज हो चुकी थी जब आदम जिस्म। इसका मतलब क्या होगा? सवाल यहाँ है, कुंतो जुइलतो वजबत लियन नबूवत, इतने अल्फाज हैं। मैं नबी था, नबी बनाया जा चुका था, नबूवत मुझ पर फर्ज हो। इसकी मीनिंग क्या हो? यानी इस दुनिया में आने से पहले डिसाइड हो चुका था कि मैं नबी बनूंगा, या कारभार ग्रहण कर लिया था? दो चीजें। अगर डिसाइड होने की बात है तो रसूलुल्लाह कोई नए थोड़ी है, सारे अंबिया के लिए पहले से डिसाइड था। तब ऐसे पहले से जनाब मूसा आ गए, वहां गए, वो तब मिली। मैंने कहा चलो मूसा को छोड़ दो, ईसा पैदा होते ही फरमाया ना, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी। कौन सा इम्तिहान जनाब ईसा का हुआ था? वो नबी पैदा हुए 3 दिन के हैं। क्या फरमाया? कुरान में है ना, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी। तो सारे अंबिया के लिए पहले से तय है कि इनको नबी होना, इनको नबी होना, इनको नबी होना, उसी आलम में तय हो चुका था। तो ये बात कहना कि पैगंबर के लिए भी तय हो चुका था कि नबी है, ये कोई फजीलत की बात नहीं है। इसलिए ईसा के लिए भी तय हो चुका था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी तय हो चुका था। बाकिया फजीलत वहां होगी जब आप ये साबित कर ले जाइए कि रसूलुल्लाह के लिए डिसाइड नहीं, बल्कि उस आलम में भी काम कर रहे थे नबूवत का। सलावत पोस्टिंग थी। उसके लिए कौन सा लफ्ज कुरान में यूज किया है? बेसत, है ना? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन। आपको कुन्तु नबिय्यन जुइलतु नबिय्यन, है ना, वजबत लियन नबुव्वा, इससे बेसत साबित नहीं होती। मगर आपको ये रिवायत इस लफ्ज के साथ भी मिल जाएगी, बुइस्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, नहीं मबूस हो चुका था। तो अगर मबूस हो चुकने की बात है, आप तो मास्टर है हुजूर। अगर आपके स्कूल में एक लड़का ना हो, आपकी पोस्टिंग वहां रहेगी, फौरन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब मास्टर बगैर लड़के के नहीं हो सकता, तो नबी कैसे बगैर लड़के हो सकता? बगैर मास्टर, लड़कों के मास्टर की पोस्टिंग नहीं होगी। तो उस आलम अरवाह में उम्मत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसकी तरफ भेज दिया गया? अब हमारे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जवाब उसी साहब ने दिया जिसकी आज विलादत की तारीख है, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह। इमाम फरमाते हैं, वही लफ्ज है, इमाम फरमाते हैं बिहारुल अनवार 15वीं जिल्द में ये आपको हदीस मिल जाएगी। फरमाया इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह ने, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन, वही लफ्ज बेअसत है, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन। बहुत से लोग अपनी तकरीरों में कहते हैं ना इमामुल अंबिया, क्या मतलब होगा इसका? ये यहाँ से तय होगा। सल्लल्लाहु इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन व हुवा रूहुन। अल्लाह ने हजरत को नबी बना के भेज दिया जबकि वो क्या थे? रूह। तो किसकी तरफ? बगैर उम्मत के कैसे? इमाम ने जवाब दिया, इलल अंबिया व हुम अरवाह, नबियों की तरफ, जबकि वो अंबिया भी क्या थे? बोलिए, रूह थे।
की बात है। फरमाते हैं क़ब्ल ख़ल्क़िल ख़ल्क़ बिअल्फ़ आम, इस दुनिया के वजूद से 2000 बरस पहले पैगंबर पैरवान नबी अंबिया की तरफ मबूस किए जा चुके थे। आज जब बात होती है सहाबा की, कौन कितना बड़ा सहाबी, उसके लिए मेयार क्या है? असहाबे किराम में बात होती है ना, अबू ज़र किस नंबर पर ईमान लाए, सलमान किस नंबर पर ईमान लाए, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि किस नंबर, तो वो मेयार बनता है ना, सभी 8वें नंबर के मुसलमान, ये 9वें मुसलमान, ये 10वें मुसलमान, बात होती है। तो आज दुनिया में भी अगर सहाबा की अजमत पर बात होती है तो मेयार क्या बनता है? कौन हमारे नबी पर कितने पहले ईमान लाया है? कुरान में भी एक आयत है, साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, है ना? कौन से साबिक? हो गई बात। तो जैसे यहाँ है, अब पैगंबर को भेजा गया कहाँ? अंबिया की तरफ नबी बना के। तो 1,23,999 नबी है जिनको हमारे नबी पर ईमान लाना है। सब एक साथ तो कलमा नहीं पढ़ लेंगे ना, सब एक साथ तो ईमान नहीं लाएंगे। जैसे यहाँ मेयार फजीलत ईमान कौन कब लाया है, वैसे आलम अरवाह में मेयार फजीलत ये है कि जो जितने पहले हमारे नबी की नबूवत पर ईमान लाया वो उतना बड़ा नबी पर सलावत एक और सलावत तो जो जितने पहले हमारे नबी पर ईमान लाया वो उतना बड़ा, बोलिए, नबी है। तो मेयार फजीलत क्या है? पैगंबर पर ईमान पर सबकत। तवज्जो फरमाया आपने। तो अंबिया भी जो बड़े हुए हैं वो हमारे नबी की बुनियाद पर मेयार फजीलत ये है। तमाम तारीफ अल्लाह की है। एक नाते पाक हुजूर की शान में, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आज इस मौके पर जश्न रहमतुल आलमीन और अपने छठे इमाम हज़रत इमाम जाबिर साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाते पाक के कुछ अशआर आपके पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला किसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की रोशनी से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सुभान अल्लाह। चार मिसरे के बाद शायर को आवाज दूंगा, हासिल उसी को होगी विरासत रसूल की, जिसके वजूद में हो शबाहत रसूल की। नाते रसूल पढ़ना है जिब्रील आएंगे, है कर्ज आप पे भी हिदायत रसूल की, है आप पे भी है कर्ज आप पे भी हिदायत रसूल की। मैं बड़े तबीयत के साथ आवाज दो रहा हूँ।
जनाब मोहम्मद तौफीक साहब की मेहरबानी वो तशरीफ लाएं। बैठे उलमा हज़रात, शायर हज़रात और प्यारे साथियों, सभी को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। बहुत मज़ा इरशाद कलियां चटक रही है, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं, हम सबके प्यारे आका, हम सबके प्यारे आका तशरीफ रहे हम सुभान अल्लाह बहुत आली सुभान अल्लाह तशरीफ रहे हैं, कलियां चटक रही है, उस्मान की सखावत देखो जहान वालों, उस्मान की सखावत, उस्मान की सखावत देखो जहान वालों, उस्मान की सखावत देखो जहान वालों, नाम नबी पे अपना अपना, नाम नबी पे अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। चार विषय के बाद आफ्ताब आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लड़कर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। मैं जनाब मोहतरम अली मिर्जा साहब की खिदमत में तशरीफ लाए। आप ये जुल्फे अबरू नहीं औसाफे हमीदा लिखो, जुल्फे अबरू नहीं औसाफे हमीदा लिखो, जैसा कुरान ने समझा उन्हें वैसा लिखो, कुरान ने समझा उन्हें वैसा लिखो, जिक्र जिस छत के तले सैयदे अबरार का हो, जिक्र जिस छत के तले सैयदे अबरार का हो, उसको फिर छत ना कहो गुंबद खिजरा देखो, उसको फिर छत ना कहो गुंबद खिजरा लिखो, वो जो सरदार रसूला है खुदा का बंदा
तुम उसको खुदारा लिखो, अपने जैसा तो ना तुम उसको खुदारा लिखो। चांद लिखना हो तो नालैने मोहम्मद लिख दो, चांद लिखना हो तो नालैने मोहम्मद लिख दो। क्यों भला चांद को उनका रुख ज़ेबा लिखो, क्यों भला चांद को उनका रुख ज़ेबा लिख दो। जिक्र मेराज का करते हो बड़े शौक से तुम, जिक्र मेराज का करते हो बड़े शौक से तुम। लहज़े रब में वहाँ कौन था गोया लिखो, लहज़े रब में वहाँ कौन था गोया लिखो। शायरों हमदे खुदा लिखने की ख्वाहिश हो अगर, शायरों हमदे खुदा लिखने की ख्वाहिश हो अगर, रब के महबूब के बच्चों का कसीदा लिखो, रब के महबूब के बच्चों का कसीदा लिखो। जुल्फो अबरू नहीं औसाफे हमीदा लिखो, जैसा कुरान ने समझा उन्हें वैसा लिखो। और अब मैं अपने आए हुए मेहमान शायरों की खिदमत में चलता हूँ। 4 उसरे के बाद मुलादा फरमाए, ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए, सारा जहां महक। ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया, मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया, हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब बदरुल हक साहब की खिदमत में, वो तशरीफ लाए, उनकी आमद के लिए एक सलवात का सहारा दें। एक मतलब दो शेर समाप्त करना। जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है, जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है, जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता। सुभान अल्लाह, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। और ये लाही जाके वहीं पर हमारा
जाके वहीं पर हमारा दम निकले, इलाही जाके वहीं पर हमारा दम निकले, जहाँ से गुंबद खजरा दिखा। दिल बोल रहा है और जिगर बोल रहा है, दिल बोल रहा है और जिगर बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, दिल बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, जिगर बोल रहा है, नाना की मोहब्बत का असर कलामे पाक की आयात पर तस्वीर हो जाए, चलो बंधे जमाने पैकरे यासीन हो जाए, कलामे पाक की आयात पर तस्वीर हो जाए, अगर शीरीनिए अखलाक़े पैगंबर ना शामिल हो तो जमजम का ये मीठा जायका नमकीन हो जाए, तो जमजम का ये मीठा जायका नमकीन हो जाए। बड़ी अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना शबीउल हसन आज़मी साहब के क़िबला काबा की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, उनकी आमद के लिए एक बुलंदतरीन सलवात का ज़ारा है। मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए चंद अशआर मौलाना फरमा दीजिए मदह हाज़िर में। कहते हैं कि दोस्ती मुमकिन नहीं है दुश्मनी के साथ में, दोस्ती मुमकिन नहीं है दुश्मनी के साथ में, रोशनी होगी न यकजा तीरगी के साथ, रोशनी होगी न यकजा तीरगी के साथ में। तो मुलाज़ा फरमाए कि दीजिए दीजिए मेहदी दी को आज दोहरी तहनियत, दीजिए मेहदी दी को आज दोहरी तहनियत, जाफर सादिक की महफिल है नबी के साथ। दीजिए मेहदी दी को आज दोहरी तहनियत, जाफर सादिक की महफिल है नबी के साथ में। और दिल में हो इश्क़े मोहम्मद, लब में हो नामे रसूल, दिल में हो इश्क़े मोहम्मद, लब में हो नामे रसूल, काम ये करना खुदा की बंदगी के साथ में, काम ये करना खुदा की बंदगी के साथ में। और काम आएगी मोहम्मद की मोहब्बत मोमिनों, काम आएगी मोहम्मद की मोहब्बत दोस्तों, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ काम आएगी मोहम्मद की मोहब्बत दोस्तों, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ में। तो मैं बहुत से लोग बहरहाल खड़े रहते हैं और बाहर खड़े रहते हैं, उनकी बात नहीं है। कहते हैं कि महफिले मीलाद में बैठे हुए हैं जितने लोग, महफिले मीलाद में बैठे हुए हैं जितने लोग, हश्र उनका हो मोहम्मद आप ही के साथ में, हश्र उनका हो मोहम्मद आप ही के साथ में। महफिले मीलाद में बैठे हुए हैं जितने लोग, हश्र उनका हो मोहम्मद आप ही के साथ में।
फरमाइएगा कि फातिमा, तारीख है ये पैगंबर के घर का इतिहास है कि फातिमा बिन्ते असद को अपनी माँ कहते रहे। फातिमा बिन्ते असद को अपनी माँ कहते रहे। ये तरीका था मोहम्मद का चची के साथ में, ये तरीका था मोहम्मद का चची के साथ में। आ गया कि सरकार ने मौला अली की वालिदा गिरामी को कहा कि जब आपकी वफात की खबर सुनी, कहा कि वो मेरी माँ के बाद माँ थी। तो फातिमा बिन्ते असद को अपनी माँ कहते रहे। ये तरीका था मोहम्मद का चची के साथ में, और करता है इस्लाम भी उसकी मजम्मत। दोस्तों पैगाम है, सुनिएगा। करता है इस्लाम भी उसकी मजम्मत। दोस्तों जो करे धोखाधड़ी भाई किसी के साथ, करता है इस्लाम भी उसकी मजम्मत। दोस्तों जो करे धोखाधड़ी भाई किसी के साथ में। और ये है फिक़्ह जाफरी, ये है फिक़्ह जाफरी, इसका तकाबुल ना करें। मौलाना फरमाएंगे ये है फिक़्ह जाफरी, इसका तकाबुल ना करें शाफई ना हम्बली ना मालिकी के साथ में। कुछ मुझसे हुए हैं विलादत के दिन, मगर साबित तो है यज़द से फजीलत रसूल की। विलादत फरमाइए दो सरा आखिर के, उसके बाद शायर आपके हवाले। हैरान इसलिए है सुलेमान की सल्तनत, हैरान इसलिए है सुलेमान की सल्तनत, अश्के गमे हुसैन है दौलत रसूल की। मैं जनाब शाकिर अली सलमान साहब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। उनकी आमद के लिए बेहतरीन सलवार का सारा है मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह का फज़ल है, एहसान है, सरज़मीन गोरखपुर जो औलिया अल्लाह का मरकज है, जहां मुबारक खान शहीद, लाडे शाह, लतीफ शाह, रोशन अली शाह, इमाम बाड़े के अंदर नको अली शाह, तमाम औलिया अल्लाह का मदफन है। और औलिया अल्लाह के मरकज गोरखपुर में हम रहते हैं, और यहीं पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी खूब रहते हैं। माशा अल्लाह। आज जश्न ईद मिलादुन नबी 17 रबीउल अव्वल जो आज की तारीख है, दिन है, वो बड़ा ही तारीख साज है। उलमाए अहले सुन्नत में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया और पूरा महीना मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी की महफिल होती है। ये सरकार मदीना का फजल है, उनकी रहमत है कि उनके नाम पे हम शिया सुन्नी सब एक हो जाते हैं। यही वो नाम है जो हमें मुत्तहिद कर देता है। यही वो नाम है जो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर देता है। नहीं तो फिरकों में मसलक में हम बढ़ चुके हैं। आज हालात है ये कि वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो वो नहीं जाते, ये मनाते हैं अहले कशा तो वो नहीं आते। हालात ऐसे हैं, सब अपने अपने फिरके और अपने अपने मसलक का झंडा उठाए हुए हैं मुसलमान, और कुफ्फार और मुशरिकीन खुशियां मना रहे हैं कि हम चाहते यही थे बट जाए ये फिरकों।
हालात ये हैं कि आज जरूरत ये है कि नबी के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ मुसलमानों, नबी के मिलाद पर कम से कम मुत्तहिद हो जाओ। आशिया फेडरेशन की जानिब से ईद मिलाद नबी का जलसा है शहर गोरखपुर में। इस इमाम बारगाह के अंदर आज यहाँ पर हाजी जियाउल इस्लाम साहब अहले सुन्नत वल जमात से एक बहुत बड़े सियासतदान समाज सेवी हैं हाजी जियाउल इस्लाम साहब, वो भी आए, हम लोगों की आंखों ने देखा। उसके बाद जफर अमीन डक्कू साहब की आमद हुई, वो भी एक बहुत बड़े सियासतदान और समाज सेवी हैं, कौम के खिदमतगार हैं, और वो भी आए, हम सबकी आंखों ने देखा अहले सुन्नत वल जमात। और साथ में शोहराब खान साहब इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के महासचिव तशरीफ लाए। तो इस बात की दलील है कि नबी के मिलाद की बुनियाद पर हम आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे नबी की शान में। अब हम इस पर देखें कि सरकार मदीना का जश्न ईद मिलादुन नबी हम क्यों मनाते हैं। आज जगह जगह गलियों में और तमाम जगहों पे चावल के होटलों पर कहा जा रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी बिदअत है मनाना। आज कुछ लोगों ने कहा कि जुलूस मोहम्मदी निकालना बिदअत है, कुछ लोगों ने कहा कि ये नबी से साबित नहीं, ये सहाबा से साबित नहीं, ये खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं, ये झंडियां लगाना, ये मस्जिदें सजाना, ये मदरसे सजाना, ये नबी के जमाने में नहीं हुआ, ये सहाबा के जमाने में नहीं हुआ। नबी जब पैदा हुए तो उसके बाद तमाम खुलफाए राशिदीन का जमाना आया, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, किसी के जमाने में जुलूस मोहम्मदी नहीं निकला, घर नहीं सजाए गए, मदरसे मस्जिद नहीं सजाए गए, झंडियां नहीं लगाई गई, तुम लोग बिदअत करते हो। ये सवाल है, क्या जवाब देगा हमारा नौजवान? हमारे नौजवान के पास कुछ जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हुआ अगर जो सहाबा से साबित नहीं है जुलूस मोहम्मदी, सहाबा के जमाने में जुलूस मोहम्मदी नहीं निकला, कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह की हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि इस्लाम के अंदर जो भी नया तरीका निकाला जाएगा, अच्छा तरीका, जो लोग उस पर अमल करेंगे उन्हें भी सवाब मिलेगा और जिसने निकाला उसे भी सवाब मिलेगा। अब अगर जो आप ये जिद मान ले कि नबी से सहाबा से साबित नहीं तो जुलूस मोहम्मदी क्यों निकाला, अब ये सवाल पैदा होता है। सरकार मदीना जब दुनिया में पैदा नहीं हुए उससे पहले मीसाक के दिन आलम अरवाह में अल्लाह ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वादा ले लिया था सारे नबियों से कि एक नबी आएंगे जिनकी तुम्हें पैरवी करना होगा, जिनकी तायीद करनी होगी। तो सरकार मदीना दुनिया में पैदा भी नहीं हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम से जबूर में कहलवाया गया कि एक नबी आ रहे हैं, आखिर जमा आ रहे हैं, उनकी पैदाइश पढ़ दो, उनका इंट्रोडक्शन करा दो। हजरत मूसा से कहा गया, तौरेत में पढ़वाया गया कि वो नबी आने वाले हैं, उनकी सिफात ये है, उनके अंदाज ये है, वो बता रहे हैं। अभी नबी आए नहीं मगर उनकी मिलाद, उनके पैदाइश की चर्चा चल रहा है। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने हवालियों से कहते हैं वो आखिर नबी आ रहे हैं, उनका नाम इस्महु अहमद होगा, वो आने वाले हैं। हवालियों ने पूछा कहीं आप वही नबी तो नहीं जिसके आने की इंजील में जबूर में बताया गया है? कहा नहीं, हम तो राह हमवार कर रहे हैं, वो आखिर जमा आने वाले हैं। और उस नबी के पैदाइश की मिलाद के लिए जिस तरह से तमाम सहीहों में बताया गया, नबियों ने बताया, आज हम पर भी वाजिब होता है कि हम आज उनके पैदाइश का चर्चा करें, उनके बारे में बताएं। हालात ये है कि मौला अली को जब रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मैदान पे सहाबा से कहा रुक जाओ, 1.25 लाख सहाबा के मजमे में रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मैदान पे रोक कर, क्या जरूरत थी रोकने की? जब हज करके आ रहे तो रोकने की जरूरत क्या थी? उम्मत को एक मैसेज देना था नबी को कि आज वो दीन ईमान इस्लाम मुकम्मल हुआ, आज वो राज बता दिया जाए उम्मत को जिसलिए नबी मबूस हुए थे। पहुंच जाइएगा वहां। इख्तलाफ तो बहुत है अहले शिया अहले सुन्नत में, मगर मैं बताना चाहता हूं तारीख शाहिद है गदीर खुम के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों के पालान से स्टेज लगाया और चढ़कर उस पर मौला अली से क्या कहा था? मन कुंतु मौलाहु फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला उसके अली भी मौला।
یا رسول اللہ اگر جو ہم اس سبق کو بھول جاتے ہیں اور اس سبق کو اپنے آنے والی نسل کو نہیں بتاتے تو ہم چور کہلائیں گے، کیونکہ تم نے دین کے اندر چوری کی۔ آج اسٹیجوں سے، میلادوں سے، عرسوں سے، خانقاہوں سے، تبلیغی جماعت کے اجتماعات سے، کانفرنسوں سے، اہل حدیث کے اسٹیجوں سے کیوں نہیں بولتے من کنت مولاہ فعلی المولا؟ حضرت علی کے بارے میں اس حدیث کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ آخر وجہ کیا ہوئی کہ امت کا نوجوان مسواک کرنے کی حدیث جانتا ہے، کرنے کی حدیث جانتا ہے، 3 بار منہ میں کلی کرنے کا حکم جانتا ہے، سب کا مذہب جانتا ہے۔ ارے ڈاکومنٹ کرنا کس کے نوجوانوں کو معلوم ہے جو سنت رسول ہے، اس نوجوان کو من کنت مولا فعلی المولا نہیں معلوم۔ سلمانی اس میلاد کے اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سلمانی سنو، وہ چور ہیں جنہوں نے چھپا لیا حدیث رسول اللہ کو۔ وہ علی سے کینہ ہے، وہ علی سے بغض ہے جو سینے سے نکلتا ہی نہیں۔ کہنے کو وہ مسلمان ہے مگر دل سے نکلتا ہی نہیں، دل سے نکلتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے جھنڈے کو بلند کرنے کے چکر میں تم نے نبی کے بھائی، تم نے نبی کے داماد کے ساتھ ناانصافی کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تم نے حقدار کو حق نہ دیا، اس وجہ سے آج امت کاٹی اور ماری جا رہی ہے۔ ایک بھائی کا زمین تم نے اگر جو چھین لیا، جذب میں لیا، تو رسول اللہ فرمائے قبر میں عذاب ہوگا۔ مولا علی کے حق کو دیا نہیں، پھر دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ شہراب خان صاحب آئیے، شہراب خان صاحب آپ لوگ آئیے، یہاں بیٹھیے۔ آپ میلاد میں آئے ہیں، آپ میلاد سن نہیں رہے ہیں امام باڑہ متولیان کمیٹی سے۔ آج ہم نے اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے پیر صاحب کا جھنڈا تو بلند کیا، مگر جو سب سے بڑے پیر محمد رسول اللہ ہیں ان کا جھنڈا محمدی نہیں بلند کیا۔ ہم دیوبندی، بریلوی، تمام قسم کے بندی اور بندہ بریلوی اور تمام قسم کے بندی بندہ میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اللہ کے بندے نہ بن سکے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھیا ہم دیوبندی ہیں۔ ارے تم دیو کی بندی رہو چاہے دیو کے بندہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے اتارے گئے ہیں۔ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اپنے آپ کو کہتے رہو دیو کے بندی ہیں، تم کون دیو کے بندہ ہیں، ہم سے نہیں مطلب، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے امت کا بڑا نقصان ہو گیا اتر پردیش شہر کے شہر سے دیو کے بندی بننے میں اور بریلی شریف کے بریلی بننے میں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے طرف سے خود کہہ رہے ہیں سلمانی کہ سنی وہ ہے جو علی کی سنت، نبی کی سنت، تمام صحابہ کی سنت پر عمل کرے۔ وہ کون سے صحابہ جو وفادار تھے؟ کچھ ایسے لوگوں کا بھی نام ہے جو نبی کو آنکھوں سے دیکھا تھا، ساتھ میں رہتے تھے، مگر رسول اللہ نے ابو ذر کو بتا دیا تھا یہ منافق ہے۔ نبی کے رازدار کو کون نہیں جانتا، ساتھ میں تو تھے مگر ان کی کتھنی اور کرنی ہے تو منافق بھی تھے۔ رسول اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، مسجد زرار بنایا بھی تھا، مگر گرایا بھی گیا تھا۔ تو میں کسی صحابی کا نام لے کے گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جب نبی کی شان بیان کرو تو مولا علی کی بھی شان بیان کرو،
जब नबी की शान बयान करो तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी बयान करो। जब नबी की शान बयान करो तो उनके लक्के जिगर नवासे की भी शान बयान करो। तुम आले मोहम्मद का हक अदा नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है नबी से कह दो ऐ महबूब कि तुमसे अजरे रिसालत नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं हमारे कुराबरदारों से मोहब्बत करो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहा अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, बस इतना ही चाहता हूं, कोई अजर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, मेरे अहले बैत, मेरी तरफ, मेरे आले मोहम्मद से मोहब्बत करना। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इस उम्मत ने नबी के आंख बंद होते ही अपना वो हाल दिखाया कि सिर्फ 50 साल का जमाना नहीं गुजरा, नबी के नवासे इमाम हसन को जहर दिया, नबी के नवासे इमाम हुसैन को शहीद कराया, नबी की बेटी जिस हाल में थी रसूलुल्लाह के पर्दा करने के बाद 6 महीना बिस्तर से रही और वहीं से वफात पा गई। कितना गम हुआ क्या नहीं मालूम, क्या क्या हुआ नहीं मालूम। 150 साल तक बनी उमैया की हुकूमत में मस्जिद नबवी के मिंबर पर ये बंदर की तरह कूदते रहे, क्या नहीं मालूम। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि हमने देखा बनी उमैया के इन बंदरों को मेरे मिंबर पे कूद रहे हैं। रसूलुल्लाह के पर्दा करने के बाद 150 साल तक मुसलसल बनी उमैया वालों ने मौला अली पर लानत नहीं करवाई। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हालात आज ऐसे हैं मुसलमानों कि पहचानो कौन नबी का घराना है और किसका क्या हक है। हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उमर फारूक को मानते हैं, उस्मान गनी को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं। कोई ये ना कहे कि सलमानी गया शिया हो गया, नहीं साहब, इल्जाम लग जा रहे सलमानी गया शिया हो गया, नहीं, हम अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को मानते हैं साहब। मगर हम ये कह रहे हैं कि उस नबी के घराने के साथ तुमने क्या किया, औलाद रसूल के साथ। और आज ये बताना चाहता हूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब यहाँ कहा जा रहा है इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने आपको तमाम खैर कसीर अता किया, इसमें हौज़े कौसर भी है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के लिए कुर्बानी करें और नमाज पढ़ें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, वही लोग जो जड़ कटे हैं, दुम कटे हैं, जिनकी औलादे नहीं, जिनका नाम मिट चुका, अबतर वही लोग हैं, अबतर वही लोग हैं। अब सरकार की हदीस है, ऐ लोगों दुनिया की नस्ल उनकी बेटों से चलती है, मेरी नस्ल फातिमा ज़हरा से चलती है, ये हदीस है। आज लोग कहते हैं कि हमारी बेटी हुई है, अब हमारी नस्ल कैसे चलेगी, और रसूलुल्लाह ने कहा मेरी नस्ल फातिमा ज़हरा से चलेगी। आज जरूरत है कि हम मसलक और फिरके का प्रचार बंद कर दें। ये सलमानी का एक पैगाम है कि मसलक और फिरके का प्रचार बंद करके अपने आप को क्या कहें, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कुरान की तरफ आइए, कुरान में कहा जा रहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, सिर्फ मुस्लिम रखा, ना देवबंदी, ना बरेली, ना शिया, ना सुन्नी। अब हम इस पर आ जाते हैं, जब हम मुस्लिम हैं तो मौला अली के चाहने वाले हैं, आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं। आज जलूसे मोहम्मदी में हम निकलते हैं नबी की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए ना। आज लोग कहते हैं कि नबी की वफात हुई थी 12 रबीउल अव्वल को, और तारीख शाहिद है नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को नहीं है, न शिया न सुन्नी, मगर इन्हीं मुनाफिकों ने 12 रबीउल अव्वल की गढ़ ली, इन्होंने तारीख गढ़ ली। इन्होंने जब देखा कि हमारा मकसद नहीं पूरा होगा, फिर इन्होंने तारीख गढ़ी, इन्होंने हदीसें गढ़ी, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया जो आज उम्मत गुमराह हो रही है। लिहाजा मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बस ये कहूंगा कि पूरी उम्मत परेशान है जुल्म और सितम से, आ जाइए इमाम मेहदी, अब वक्त बहुत कम है। आज उम्मत को नहीं मालूम इमाम मेहदी कौन है, ये कौन आएगा, अकीदे की तालीम तक नहीं दी गई। तो दोस्तों आज हमने आपको शिया फेडरेशन गोरखपुर के ज़रिए एहतमाम किए गए जश्न ईद मिलादुन नबी को दिखलाया, और आपने देखा कि किस तरह से तमाम उलमा किराम
اور شعراء کرام نے جو اپنے کلام پیش کیے، اور امید کرتے ہیں دوستو یہ پروگرام آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کیجئے تاکہ یہ جو پیغام ہے وہ عام ہو سکے۔ دوستو دستک ٹوڈے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ عرفان صدیقی، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔